Okay. Student, course outline is now recording start. Okay. Course outline is exercise 15.1, and here question number 17 to 24, and exam exercise is 14.1, and examples plus question number 1 to 16 are included in it. And also student, exercise 15.1 and exercise 14.1. Okay. Uh, For exercise 14.1, I will start the questions. I will share with you the two videos. One video is related to the question number 23 or 24 in from exercise 15.1. And also in this video, in the first video, there is also the examples of the 14.1. There are four examples of the double integration with applying the limits. Okay. And now I will solve the question number 1 to 16. Okay, and this is the chapter number 14. 14 is basically double integral question. Evaluated the iterated integration. It may be double or it may be triple integration. Okay, first of all, student, these are the question number 1 to 12, and I will solve. Basically, your questions are 1 to 16. Okay, and but from 1 to 12, I solve here the one question. This there is the simple integration or dy. In some questions, you notice that there is the dy dx. So first of all, dy limit is 0 to 2 and dx limit is 0 to 1. Okay, this is the inner and this is the outer integration. And firstly, you have to integration with respect to y, and then you have to apply the integration with respect to x. Okay, and in the third question, you notice that dy dx is also equal to dA. So in the third question is dx dy. Okay, so inner integration is with respect to it to x, and outer integration is with respect to y. So according to the statement, you have to apply. Okay, there are some questions. For example, I will solve here. Mm, for example, student, uh, I think question number 9 I solve here. Also, it's up to you. If you demand any question, man, you just first solve this question. I can also solve. Okay, for example, I take the question number 9. I realize that it is a different question. So its values are 0 to 1. Evaluate the iterated integral or double integral. Basically, the inner value is that this is the volume formula. Okay, find evaluate the iterated integral. So then basically we have to find the, okay, finally question number 9, 0 to 1 and 0 to 1. Okay, x over xy plus 1 whole square into dy and dx. Okay, and in the solution, basically formula of the volume, basically you have to find the volume. Volume is double integral of the region, and z is the surface area. Z and dA. Okay. Then there is the limit a to b. For example, a to b, c to d, and z is any function z, and this is the dx dy. Okay. Maybe it is dy dx, and this is the limit of the dx dy is limit of the a to b, and cd is the limit of the dy. Okay. For example, I have,
Okay, for example, I have the given value is 0 to 1 and 0 to 1 x over xy plus 1 whole square into dy and dx. Okay, first of all, I have to integrate with respect to y. So in the integration, okay, student, there should be the integration in the first of all, integration with respect to y. Okay, integration with respect to y, you notice that there should be the integration, a derivative of the y, derivative with respect to y should be in the numerator. Okay, that is the rule of the integration, that if there is in the denominator and values power is greater than 1. If there is the power is 1, then we write here the natural log of. For example, if there is the 1 by x dx, then we write here the natural log of x plus constant. But if there is application of the limit, then we don't write here this plus c. Okay, c will not use here if there is the limit. Okay, this is that is if there is the power of in the denominator value is 1, but if the power is greater than 1 or less than 1, then you have to check the derivative of the denominator, d by dx of denominator or numerator, but under the power, the base value, you have to take the derivative xy plus 1. So its result is x into 1 plus 0. It is result is x. Okay, and this value should be on the numerator. Okay, and it is okay done. So this will be done like this, that 0 to 1, and it will be xy plus 1 whole power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1. Okay, and this value will be cut automatically. Okay, so this is the integration with respect to y, and there is the lines like this slash, and you have to apply the limit on this is the lower limit and this is the upper limit. By chance, both limits are the same, but if there is this is the basically the inner limit you apply according to dy, and this is your dx. Okay, so now further we verify it. 0 to 1 xy plus 1 whole power minus 1 over minus 1 into dx. Okay, so further 0 to 1 minus 1 over x plus y, xy plus 1 whole power positive 1 into dx. जी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट जो है वो बता सकता है 1 xy प्लस 1? यस जी, 1 ओवर प्लस एक्स का। अ, जी, अच्छा जी, -2 + 1 है, -2 + 1 इस तरीके से आपके पास आ गया जी। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोई स्टूडेंट बताए? 0 to 1 -1/(x, y + 1 होल पावर 1)। अब इसके अंदर आपके पास नेचुरल लॉग आ जाना चाहिए। ठीक है, मैम ये पुट मैम वॉइस में पुट नहीं करेंगे? अच्छा सॉरी, लिमिट पुट करनी है, सॉरी, एक मिनट, मैं वही चीज नोट कर रही हूँ कि ऊपर जो है वेरिएबल की वैल्यूज नहीं आ रही। जी, एक मिनट, लिमिट आपने पुट करनी है यहाँ पे। जी स्टूडेंट, यू हैव टू अप्लाई द लिमिट 0 to 1। लिमिट जो है वो आप पहले पुट करेंगे। ठीक है, इसकी पावर है 1। ठीक है, अब आपने बेसिकली, मैं यही चीज देख रही थी कि अगर इसका डिनोमिनेटर लेते हैं, मीन्स ये dx है ना, तो आप dx के हिसाब से, यहाँ पे dy था जी, ठीक है, यहाँ पे dy के हिसाब से आपने लिया था डेरिवेटिव। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेती हूँ, तो वो y आ जाएगा, रह जाएगा।
तो वो अभी ये भी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बताया कि हम पहले लिमिट को जो है अप्लाई करेंगे, देन वी विल फर्दर सॉल्व इट। जी अब आप देखिए जरा स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्लाइंग द लिमिट आप यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड अप्लाइंग द लिमिट। अच्छा जी, अब ये 0 to 1 है। अप्लाइंग द लिमिट के अंदर आप इस तरह करेंगे कि पहले आपने इन स्पेस ऑफ वाई, ठीक है, आपने ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था, सो वाई की जगह पे आप लिमिट पुट करेंगे, नॉट इन द फॉर्म इन एक्स वैल्यू, ठीक है। -1 ओवर, आप बेहतर है कि आप ना पावर जो माइनस वगैरह है तो उसको आप पॉजिटिव पावर की कंडीशन में ले जाएं, चाहे वो डिनोमिनेटर में आए चाहे वो नोमिनेटर में आए। जी अब आपने y की जगह पे x × 1 +1, और फिर ये तो आगे आपके पास इसका अपर लिमिट अप्लाई हो गई, ठीक है। फिर आपने माइनस करके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह करें, -1/x × 0 + 1, ठीक है, ये दिस इज द क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से आप देखें 0 to 1, तो -1/x + 1, x + 1, माइनस एंड माइनस प्लस 1/0 + 1, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। यस अब ये चीज आपके पास आ जाती है 0 to 1 -1/x + 1 एंड +1/1 इज 1 इंटू dx। ओके, आप सेपरेटली भी इनको अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इनकी ले सकते हैं। नाउ वी विल टेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो 0 to 1 -1/x + 1, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट, यस जी, ये अब कौन स्टूडेंट है, कंट्रोल जी करें इसे। क्या करें फिर, इस तरह है कि आपकी क्लास में जो है वो बता दें आप, फिर मैं आपको इसमें से करके साइड पे, और फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कर लेती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट मैं को भी फाइंड आउट, फेक आईडी से आते हैं, पता भी नहीं चल रहा। नहीं तो ये आपकी क्लास नहीं दिया है ना। लेकिन मैम हम हमारी इसमें क्या गलती? ये नहीं बात होती कि आपकी क्या मिस्टेक है, ये बात नहीं है स्टूडेंट। बात ये है कि किसी एक स्टूडेंट की वजह से ये चीज है, अब्दुल जी, ठीक है। अच्छा मैं मैम क्लास के ग्रुप यही में आपसे सीनियर बात भी कर ऐड रही हूँ होते हैं। स्टूडेंट कि अगर आपने खुद क्वेश्चन करने हैं तो कर लें, फिर आप खुद इस तरह से, मैंने तो आप लोगों को आइडिया देना है कि भी ये चीज ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है तमाम स्टूडेंट जो है, जैन रजा है आपकी क्लास में कोई? यस मैम। ओके, रोल नंबर लिखें स्टूडेंट, अपना नाम क्या गया। ओके ठीक है, जैन रजा के अपना। अच्छा जी, जी तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा खैर, अब इस तरफ देखते हैं कि जी स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन आप इस तरह से करेंगे कि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये आ जाएगा -ln (x + 1), ठीक है, +x, ठीक है। यहाँ पे पावर जब आपके पास 1 आ जाएगी ना, तो वो नेचुरल लॉग के अंदर आपके पास आ जाएगी चीज, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपने जो लिमिट है वो 0 to 1 अप्लाई कर देनी है। इसमें प्लस कांस्टेंट नहीं आता, इफ देयर इज द लिमिट एप्लीकेशन आ जाए देन देयर इज नॉट द साइन ऑफ द +c, ठीक है। ये डेफिनेट या इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया स्टूडेंट कि आई विल शेयर द 2 वीडियोस,
उसमें मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, जो पिछली एक और वीडियो है जिसके साथ मैंने ये काम किया हुआ है, तो मैंने, अच्छा जी अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अप्लाइंग द लिमिट है। तो पहले आप x की जगह पे, ठीक है ना, जो वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन है ना उसी को जगह पे माइनस एल एन ऑफ 1 + 1 + 1, ठीक है, ओके, माइनस एल एन ऑफ 0 + 1 + 0, so minus ln of 2 + 1, now I also apply the minus sign, plus natural log of 1, 0 + 1 + 0, ओके। सो आप यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके पास है ln ऑफ माइनस ln ऑफ 2 और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यूज देख लेते हैं इस सिंपल कैलकुलेटर में है या नहीं। फिर नेट से देखना पड़ेगा अदरवाइज। जी यहाँ पे तो ln की वैल्यू नेचुरल लॉग की नहीं नजर आ रही। जी नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2.6931, तो माइनस -0.6931 +1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1। अब ये देखें, आप लोगों ने हमेशा कैलकुलेटर को यूज करना है। अब ये वाला देखें कैलकुलेटर जो इनका है ना, कुछ स्टूडेंट्स कुछ कमांड पहले लेते हैं, कुछ बाद में कैलकुलेटर्स लेते हैं। इसलिए जो आपने पेपर में यूज करना है, जैसे मैं आमतौर पे कैलकुलेटर्स कहते हैं कि पहले नोटिफिकेशन दिया जाए कि हम ये काम करने लगे, मैंने नेचुरल लॉग पे क्लिक किया, उसने कहा इनवैलिड पॉइंट इनपुट, ठीक है। तो असल में आमतौर पे कैलकुलेटर्स ऐसे नहीं होते, ये कह रहा है कि पहले आप 1 लिखें फिर बाद में आप बताएं क्या चीज अप्लाई करनी है, यानी मैंने अब नेचुरल लॉग लिखा है, तो उसने कहा नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो आपके पास 0 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग ना उसको देख के -0.6931, ओके स्टूडेंट, दैट इज द रिजल्ट। अच्छा जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं एक दफा कि मैंने इसकी एग्जाम क्वेश्चन है 1 to 16 है, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया अभी। कल वाली क्लास में हम इसके 12 के बाद वाले क्वेश्चंस में से कुछ कराएंगे, ठीक है। इसमें आप देखें कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, जिस वक्त हमने डी वाई के हिसाब से ली है, तो ये देखें डी वाई के xy+1 का पावर है, होल पावर है -2 + 1/-2 + 1 इंटू डी एक्स है, ठीक है, ये डी वाई के साथ। इसीलिए जब लिमिट आपने अप्लाई करनी है ना तो वाई की जगह पे आप करेंगे, ठीक है, x × 1 और फिर ये x × 0, ठीक है। x की वैल्यूज अपनी जगह पे हैं लेकिन y की वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जो फिर रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी उसके ऊपर फिर आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जहाँ पे x होगा वहीं पे जो है आप लिमिट को अप्लाई करेंगे। अच्छा अब मैं आपसे जरा सिंपल जो है पहले थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में बात कर लूं कि इससे पहले ना अभी जो आपके साथ फर्दर सेकंड वीडियो मैंने शेयर की है करूंगी, वो यही है कि ये जैसे वॉल्यूम होता है, जैसे यूज अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज बाउंडेड अबव टू द प्लेन है, ठीक है। ये अब आपके पास प्लेन है, मैं एग्जाम्पल 3 आपको वैसे दिखा रही हूँ कि इसके अंदर आप देखें, एंड बिलो बाय द रेक्टेंगल r इज इक्वल टू 0 to 1 एंड 0 to 2, तो ये x की लिमिट हो गई, ठीक है, और ये y की लिमिट यहाँ पे देखें 0 to 1 एंड 0 to 2। अच्छा मैम और इसमें ये हमेशा आपके पास सबसे z, पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है डेरिवेटिव इंटीग्रल। जी यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? मैम हमेशा फर्स्ट इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है। नहीं नहीं, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, स्टूडेंट मेंशन किया जाएगा कि किसके हिसाब से आपने लेना है।
इसमें मैं ये बता रही हूँ, ये x की लिमिट्स हैं 0 to 1। ये y की लिमिट है 0। अच्छा जी, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, और फिर बाद में जो है इंटीग्रेशन जैसे आपको बताया जाएगा, आप अकॉर्डिंग टू उस तरह कर लेंगे। वॉल्यूम जो होता है ना, उसका फार्मूला ये है, डबल इंटीग्रल रीजन जी डी ए। डी ए जो होता है वो आपके पास होता है यहां से, मतलब ए बी इनर वैल्यू सी डी, और ये जी जो भी वैल्यू, जैसे कि इसमें जी इसके लिया हुआ है, और ये डी एक्स डी वाई। ठीक है, और डी वाई डी एक्स अगर आप करेंगे ना तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन्स ये इनर के लिए डी एक्स डी वाई है, और ये आउटर के लिए है। लेकिन अगर आप डी वाई डी एक्स कर देते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे पेपर में गिवन है कि डी एक्स डी वाई, तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू दिस जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं भाई मैंने डी वाई डी एक्स करना है, तो फिर आपको लिमिट उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। मीन्स ये लिमिट जो है, अगर आप यहाँ डी वाई कर देते हैं तो 0 to 1, और इसकी लिमिट देखें यहाँ पे चेंज हो गई है। अच्छा खैर, अकॉर्डिंग टू दिस इज पॉइंट ही आप चलें। तो यहाँ पे देखिए, उसने वॉल्यूम का फार्मूला डबल इंटीग्रेशन में दिया है। ये है 0 to 1 है, एक्स इन 3D एक्स वाई एंड जेड 0 to 1। कोई ना रेक्टेंगल बनाना होता है, एरिया अंडर द कर्व के अंदर आपने कुछ इस तरह से करना होता है। ये y की लिमिट्स हैं 0 to 2। ठीक है, इनका जो एंडिंग पॉइंट है ना, वो ये वाला बन रहा है x1 और y2, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप आ जाती है। तो ये आपके पास स्पेस ये है। ठीक है, खैर ये आपने इस तरह से 4 - x - y, ये भी आपके पास एक वीडियो भी शेयर होगी, तो उसके अंदर ये सारी अच्छी सी सॉल्व करके बताई गई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास स्टूडेंट एग्जाम्पल्स हैं इसकी 1 से 4 तक ही हैं। हम्म। जी, एग्जाम्पल इसके 1 से 4 तक ही हैं, मतलब इसी से रिलेटेड ही हैं। ऐसे ही डबल इंटीग्रेशन वगैरह के साइन का ही इस्तेमाल किया गया है, कोई इसके अंदर डबल इंटीग्रल ही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 की मैं बात जरा कर लूँ आपके साथ, फिर 14.1 पे आते हैं। कि इसका एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ किया है, एक्सरसाइज 15.1 का। अच्छा जी, 15.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 17 to 24 थे जो। यस, ग्रेडियंट डॉट एफ क्रॉस जी, उसके बारे में भी मैंने आपके साथ अभी जो है ना, वो एक वीडियो जो है वो बनाई है। 24 जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, 24 आई थिंक सो। ठीक है, उससे रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ से वापस मैं जा रही हूँ कि ये मैंने जो दूसरी वीडियो है उसके बारे में, दोनों वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं, कि मैं आपको ना ओवरव्यू में बता दूं कि इसकी इंटीग्रेशन के व्हाट आर द पॉइंट्स टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। 6 chapter number 6 is 8, 10, 13, and this is the, I think so, 14 chapter. I start now.
तो 14.1 की वो वीडियो लाजमी आप देखिएगा। मैंने अभी लास्ट कल वाली क्लास की वीडियोस भी आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है बाई चांस मैं सेंड नहीं कर सकी, लेकिन वो भी मैं आपके साथ साथ ही शेयर कर दूंगी। दो ये वीडियोस हैं, दो कल की वीडियोस हैं ना, कल की 3 वीडियोस थी, क्योंकि एक में 3-4 स्टेप की एक और वीडियो भी बनाई गई थी, तो 5 वीडियोस जो है ना वो आपके साथ शेयर होंगी। अच्छा जी, आप जरा देखें कि 14.1 के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 16 की तरफ ही आ रही हूँ जी। यहाँ पे आप जरा नोट करें स्टूडेंट, ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। ओके, दीज आर द क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1 इजीली यू कैन इंटीग्रेट, क्वेश्चन 2 इज इजीली, 3 इज इजीली, 4, ठीक है ना। जब आपने dx किया है तो x³/3, y खत्म हो गया, ठीक है ना, कांस्टेंट आ गया ना, 0 आ गया, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से ऑन वर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ 5, ठीक है, e⁻x+y है, तो जी e⁻x+y है, तो इसके साथ क्या होता है स्टूडेंट, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होती है। चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको, साथ ही आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to natural log of 3, 0 to natural log of 2, e⁻x+y into dy dx. Okay, in the solution, this is values is a given integration with respect to y. So 0 to ln 3. ओके, इंटीग्रेशन में इस तरह है कि आपकी ये चीज ऐसी एज इट इज दिस वैल्यू शुड बी x+y, एंड इन डिनोमिनेटर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डी ऑफ dx+y, ठीक है। आपने उसमें देखा था कि उसमें न्यूमरेटर में था आपके पास, मेरा ख्याल है इसमें शायद डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, आई थिंक सो, लेकिन अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x y लिख देते हैं। अब फौरी तौर पे देखिए, हम नेट की सहूलत है आपके पास, अक्सर हम देख लेते हैं कि इंट ऑफ ई रेज पावर ई रेज पावर 3x कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि मैं उसको हाँ उसमें उसको उस तरह से ले लिया। हाँ जी, देखिए डेरिवेटिव जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ऐसे में मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन करवाया है, तो उसके अंदर जो डेरिवेटिव था ना वो न्यूमरेटर में आ रहा था ना, ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में जो है वो डेरिवेटिव जो है ना वो आपके पास नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखें, इसका डेरिवेटिव जो है ना पावर का वो हमने डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब यहाँ पे साथ ही लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी, 0 to नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू dx। आप सबसे पहले आप ये चीज देखिएगा स्टूडेंट, कि आपके पास भी ना जस्ट लाइक काम हमें सारा टाइम जितने आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इन द प्रीवियस क्लासेस, ये तो अभी आपका जो है ना स्टार्टिंग क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप एमएस करते हैं, पीएचडी करते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं ग्रिप रहती, तो आपने साथ साथ उसको तैयार तो नो डाउट इन टच तो रहना होता है, लेकिन अक्सर अगर आपसे हो जाए तो फौरी तौर पे आप उसे जो है ना वो किसी सोर्स से जरा ना चेक भी कर लें साथ ही, कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिए e⁻x+y ओवर, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड प्लस 0, ठीक है, 0 to ln 2 dx। ओके, नाउ 0 to नेचुरल लॉग ऑफ 3 e⁻x, दिस ये सारी वैल्यू तो 1 के इक्वल होगी ना, x+y सिंपल रह गया आपके पास, इंटू 0 to नेचुरल लॉग ऑफ 2 dx। लेकिन अब ये दोनों वेरिएबल्स नहीं रहते इसके अंदर, जो आपके पास y का वेरिएबल है ना, dx तो रह गया है, जो y के साथ आपने इंटीग्रेशन की थी ना,
तो y की जगह पे आप लिमिट आप स्टूडेंट पुट करेंगे। ठीक है, तो इस y की जगह पे हम लिमिट पुट करते हैं। आपके पास सिर्फ x का वेरिएबल, जिसकी इंटीग्रेशन आप कर लेंगे ना, वो वेरिएबल वेनिश हो जाता है। अब आपने अप्लाई किया, अप्लाइंग द लिमिट, तो यहाँ पे आप जरा देखें, ये वाली लिमिट आपने अप्लाई, अपर लिमिट ई रेज पावर x प्लस ln ऑफ 2 माइनस ई रेज पावर x प्लस 0, सो इट्स वैल्यू इज 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू डी एक्स। तो फाइनल जो वैल्यूज है वो आपके पास ई रेज पावर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस ई रेज पावर x, दो वैल्यूज अब आपके पास आ गई हैं, 0 टू ln ऑफ 3 इंटू डी एक्स। सो आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, ई रेज पावर x प्लस ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ, अच्छा मैं चेक कर लूं कि वो मैंने डेरिवेटिव y के साथ लिया था या नीचे x के साथ ले लिया था। एक मिनट जी, ये यहाँ पे ये स्टूडेंट डी वाई होगा, क्योंकि x तो है ना, y के साथ होगा। ये 1 प्लस 0 की जगह पे 0 प्लस 1 है, वैसे एट द एंड तो ये 1 ही आ गया है। वो असल में आपने देख लेना है कि जिस वेरिएबल की इंटीग्रेशन हो रही होगी ना, उसी के साथ डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस ln ऑफ 2, ठीक है, माइनस ई रेज पावर, एक मिनट इमरान, अच्छा जी, माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ई रेज पावर x है ना, उसकी इंटीग्रेशन वही रह जाएगी, ये पावर का डेरिवेटिव जो है ना वो असल में 1 ही रह जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 0 टू ln ऑफ 3, तो यहाँ पे ई रेज पावर x प्लस ln ऑफ 2 ओवर डेरिवेटिव देखें इसका 1 प्लस 0 माइनस ई रेज पावर x ओवर 1। ठीक है, ये अब आपके पास 1 ही वैल्यू आ जाती है, 0 टू ln 3। तो यहाँ पे अब आपने फर्दर जो है अप्लाइंग द लिमिट कर दिया, तो यहाँ पे ई रेज पावर जी x की जगह पे अब लिमिट पुट होगी, ई रेज पावर ln 3 प्लस ln 2। ठीक है, और माइनस ओवर 1 है तो वो 1 ही रह जाएगा, ई रेज पावर ln ऑफ 3। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखें, ई रेज पावर जब इनमें प्लस हो रहा है तो ये इट्स मीन ये प्रोडक्ट हो रहा होगा ना, ln ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ई रेज पावर ln 3, यानी कि नेचुरल लॉग का एक है कि ln ऑफ m n का मतलब है कि ln m प्लस ln n। ठीक है, कि अगर दो नेचुरल लॉग प्लस हो रहे हैं तो इस तरह। अच्छा, तो इसके अलावा ये आ जाता है आपके पास ई रेज पावर नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस ई रेज पावर ln ऑफ 3। अब यहाँ से देखें ई और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो गई है, तो आई थिंक सो x6 - 3 दैट इज इक्वल टू आंसर इज 3। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा साथ। ओके, ये तो अब आपके पास हो गई है वैल्यूज। ठीक है, मैं उसके से रिलेटेड जो है आपके साथ जरा एक मिनट इसकी रिकॉर्डिंग जो है ऑफ कर रही हूँ, ताकि फर्दर कोई डिस्कशन कर